Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. This is second part of our fourth week lecture. पहले हाफ में हमने देखा कि रूटिंग किसे कहते हैं एंड किस तरह हम रूटिंग प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. In the second part of the lecture, we will be seeing how routing protocols can be used for mobile ad hoc network. What are the challenges associated with the design of protocols, routing protocols for mobile ad hoc network? What are their characteristics? And finally, we will see how we can categorize different protocols, how we can categorize them into different categories. So, in today's lecture, we are going to explore. So, आपको पता है कि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोबाइल नोड्स जिनको हम होस्ट भी कहते हैं and they are connected with the help of wireless link without the assistance of any fixed centralized network infrastructure. जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क that is के the nodes keep moving and they move randomly. और इस नोड मोबिलिटी की वजह से जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है इट चेंजेस रैपिडली फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट. सो जो भी रूटिंग प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल वाइड नेटवर्क्स में और आल्सो इन सम अदर wireless networks, they cannot be directly adopted into the MANET environment because of the unique characteristics of mobile ad hoc network. And some of the characteristics that we seen were like high mobility, dynamic network topology, absence of any centralized infrastructure like base station or access point. इसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में और वो कंस्ट्रेंट बैंडविड्थ पे हैं, वो कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज पे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द नोड्स दे आर बैटरी पावर्ड. तो इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट है वो वायरलेस लिंक्स पे भी है बिकॉज द मीडियम इज़ वायरलेस. सो देयर आर इनहेरिटेड इश्यूज रिलेटेड विद द वायरलेस लिंक्स. सो ऑल दीज इश्यूज जब भी आप कोई रूटिंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेंगे फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, you have to keep in mind all these issues. Besides from all these issues, a number of routing protocols for mobile ad hoc network has been proposed in the recent past. And also for the subcategories of mobile ad hoc network like VANET, like FANET, like opportunistic networks, like WSNs, उनके लिए भी routing protocols जो है वो develop किए गए हैं और design किए गए हैं. So let us elaborate some of the issues that need to be addressed while designing routing protocol for MANET. जो सबसे अहम इशू है जिसको हम एड्रेस करते हैं while we are designing a solution which is related with solving problem of the routing a packet from source to destination. We need to keep in mind that we are designing a solution where the nodes are highly mobile, and due to this mobility जो network की topology है it is also highly dynamic, right, because of the movement of the nodes. और इसका मतलब है कि इस मोबिलिटी का और इस चेंज इन टोपोलॉजी का इफ़ेक्ट जो है वो ऑन गोइंग सेशंस पे भी होगा. लेट्स सपोज टू नोड्स आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर एंड उनकी जो कम्युनिकेशन है जो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्योंकि मल्टी हाफ कम्युनिकेशन है तो दरमियान में कोई इंटरमीडिएट नोड जो है वो मूव करता है टू अ न्यू लोकेशन. नाउ जो आपका ऑन गोइंग सेशन है उसमें अब जो है वो एक पाथ ब्रेक आ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट नोड मोबिलिटी. तो उसका जो एंड इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन पे. जो ऑन गोइंग सेशन है उस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा. सो योर डिज़ाइन सोल्यूशन मस्ट बी एबल टू एड्रेस सच टाइप ऑफ इश्यूज विच आर अकरिंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नोड्स.
तो हम कह सकते हैं कि इस मोबिलिटी की वजह से डिसरप्शन जो है वो आकर होती है। अब ये जो मोबिलिटी है, जो इस एग्जांपल मैंने आपको अभी दी, that is not the case of only the intermediate node, कि सिर्फ intermediate node ही मूव कर सकते हैं in the path, no। जो आपके पास सोर्स है वो भी मोबाइल हो सकता है, और जिसके लिए आप पैकेट सेंड कर रहे हैं, जो आपका एंड डेस्टिनेशन है, एंड नोड है, उसकी मोबिलिटी भी पॉसिबल है। So your solution must address mobility of the source, mobility of the destination, as well as mobility of any of the intermediate node which lie in the way, in the path toward the destination. So mobility is a key challenge in designing the routing protocol. Sorry. इसके अलावा जो डिसरप्शन है, अगर हम बात करें वायर्ड नेटवर्क्स प्रोटोकॉल की, उसमें अगर कोई लिंक ब्रेक करता है, कोई डिसरप्शन होती है, कोई पाथ जो है वो ब्रेक होता है, तो जो आपके वायर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर डिज़ाइंड कि वो जो है अल्टरनेटिव रूट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं ड्यूरिंग दीज पाथ ब्रेक्स, राइट। लेकिन सच नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की जो कन्वर्जेंस है दैट इज़ वेरी स्लो, जो कि हम यूज़ करते हैं वायर्ड नेटवर्क में। इन रीजंस की वजह से जो वायर्ड नेटवर्क्स के ट्रेडिशनल रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जिस तरह पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर में हमने कुछ रूटिंग प्रोटोकॉल्स देखे थे, तो उनको आप डायरेक्टली एज इट इज़ मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स में डिप्लॉय नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द नोड्स which obviously result in the frequent network topology changes. So routing protocol for mobile ad hoc network must be able to perform efficient and effectively in case of mobility। तो इसमें mobility management issues को address करने के लिए facilities होनी चाहिए, जो भी protocol आप design करते हैं for mobile ad hoc network। So that is the first issue, the first challenge that need to be addressed while designing a solution for routing protocols. Second issue, there is something related with bandwidth constraints, and this is not only an issue which is related with MANET। जो भी वायरलेस नेटवर्क्स हैं, जितने भी वायरलेस नेटवर्क्स हैं, सब में बैंडविड्थ इज़ एन इशू, बिकॉज हम जो है मीडियम को शेयर करते हैं अमॉन्ग मल्टीपल यूज़र्स। तो जहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग की बात आती है, वहाँ पे एफिशिएंसी की भी बात जो है वो आती है। तो हमारे पास जो मीडियम है दैट इज़ द रेडियो medium wireless links हैं, and they are always limited in their size, in their capacity, in the data rates that they provide। So actually wireless के केस में जो data rates available होते हैं they are much more less than as compared to the wired network। Wired network में you have normally a high bandwidth available, higher data rates available, while in case of wireless network the situation is different। तो जो आपके रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ये चीज़ इम्पोज करती है कि जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमल तरीके से उसको यूज़ किया जाए। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि किस तरह आपका जो प्रोटोकॉल है वो बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है, एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल। You have to keep the overhead as low as possible in case of a routing। यानी जो आपके कंट्रोल मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं इन द नेटवर्क, वो कम से कम बैंडविड्थ को यूटिलाइज करें, राइट। आप जो है वो ब्रॉडकास्टिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल मैसेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप मैसेजेस के साइज़ को जो है वो स्मॉल रख सकते हैं इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द लिमिटेड बैंडविड्थ अवेलेबल। सो ये जो बैंडविड्थ है इट इम्पोज सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल्स, राइट।
लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स है दे एक्सचेंज डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन द टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और इन ऑर्डर टू गेट अ फ्रेश लुक ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। चूंकि आपका इन्वायरमेंट मोबाइल है तो फ्रीक्वेंटली आपके लिंक्स न्यू लिंक्स इस्टेब्लिश भी हो रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग आपके लिंक्स हैं उसमें ब्रेक्स भी आ रहे हैं। सो नेटवर्क टोपोलॉजी इज चेंजिंग एंड ऑल द नोड्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द करंट द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द नेटवर्क में जो टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो सारे नोड्स को पता होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी अमंग डिफरेंट नोड्स अमंग डिफरेंट रूटर्स। However, the cost for achieving such objective must be a minimum in terms of bandwidth जो कि आपको अवेलेबल है, राइट। सो आप लोगों ने एक बैलेंस रखना है, एक तो आपने खुद को अपडेट रखना है अबाउट द करंट नेटवर्क टोपोलॉजी और दूसरा आपने जो ओवरहेड है उसको कम से कम रखना है in order to address the challenges related with the bandwidth. Okay. So this was the second issue. Another issue, the third one, is that your protocol must be error prone and broadcast mechanism को it must handle efficiently. So आपको पता है कि रेडियो चैनल जो चैनल्स हैं उसमें मोस्टली हम ब्रॉडकास्ट पे डिपेंडेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कवर हु इज़ इन द नेबरहुड, यानी आप हेलो हाई मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी, तो उस केस में यू हैव टू रिलाई ऑन द ब्रॉडकास्ट, राइट। तो उस केस में जो आपका रेडियो चैनल है उस पे आप काफ़ी चैलेंजेस जो हैं, यूनिक टाइप के चैलेंजेस जो हैं वो इम्पोज करता है over the broadcast nature in case of mobile ad hoc network, क्योंकि जो वायरलेस लिंक्स हैं they have time varying characteristics in terms of link capacity and link error probability. So इसका मतलब है कि जो ad hoc networks के जो routing protocols हैं they need to interact with the MAC layer to find alternative routes through better quality links. अगर किसी एक लिंक की क्वालिटी वो डिग्रेड होती है ड्यू टू एनी रीज़न, right, due to obstacles, due to distance from the antenna, due to congestion or any other factor, अगर किसी लिंक की क्वालिटी डिग्रेड होती है, so your protocol must be able to select alternative better quality links in order to deliver the packet toward the destination, right. So आपका प्रोटोकॉल इन इश्यूज को भी जो है वो एड्रेस करेगा if you are designing a protocol for mobile ad hoc network. Another issues related with the MAC is the collision of packets. बहुत सारे problems हैं, दो problems को अभी हम पढ़ेंगे भी, उसको हमने पहले भी देखा है. The first one is the hidden node problem and the second one is the exposed node या terminal problems. उनकी वजह से कंजेशंस अकर होती है, कोलिजन अकर होती है ऑफ द कंट्रोल एंड डेटा पैकेट्स. सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट मोबाइल एड हॉक नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल फाइंड पाथ्स जहाँ पे कंजेशंस कम हो, कोलिजन कम से कम हो और जहाँ पे आपको हाई थ्रूपुट जो है वो मिल सके. सो योर प्रोटोकॉल मस्ट बी एबल टू एड्रेस दिस इश्यूज एज वेल. हिडन और टर्मिनल नोड प्रॉब्लम को वो जो है वो एड्रेस करेगा और इस पे हमने काफ़ी डिटेल से बात भी की थी इन दो प्रॉब्लम्स पे. लेट मी रिवाइज के हिडन नोड प्रॉब्लम क्या होता है, जहाँ पे आपके पास कोलिजन्स अकर होती है बिटवीन द पैकेट्स, क्योंकि एक नोड दूसरे नोड के ऑन गोइंग ट्रांसमिशन से अवेयर नहीं होता, राइट. सो दोनों अगर एट द सेम टाइम सेम डेस्टिनेशन के लिए पैकेट ट्रांसमिट करेंगे एट द सेम टाइम विदाउट नोइंग अबाउट द अदर ट्रांसमिशन, सो ऑब्वियसली कोलिजन विल अकर. उसको हम हैंडल कर सकते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड मैकेनिज्म के ज़रिए, बट स्टिल इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क द प्रॉब्लम इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट. इसके अलावा एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम भी है जिस पे भी हमने बात की थी कि दैट इज़ एक्चुअली द इनएबिलिटी ऑफ नोड जो कि ब्लॉक होता
होता है ड्यू टू ट्रांसमिशन बाय अ नियर बाय ट्रांसमिशन नोड, यानी कोई नोड ट्रांसमिट कर रहा है तो वो अपने पड़ोसी नोड को ट्रांसमिशन से जो है वो रोक लेता है. दैट इज द एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम. Some other issues that need to be addressed while designing a routing protocol for mobile ad hoc network, that is the resource constraint, especially if we are talking about some WSN wireless sensor networks, underground sensor network, underwater sensor network, और इन सम केसेस बॉडी एरिया नेटवर्क. वहाँ पे मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं ओवर द नोड्स जो कि ऑपरेट करते हैं इन द नेटवर्क. One of the concern is their battery life, another concern is the processing power, another concern is the storage capability, transmission capability. So these resources are limited in specific type of networks or in specific type of subcategories of mobile ad hoc network, right? Why are these constraints there? Because of the portability of the devices that we are using in mobile ad hoc network, and also the restriction over the size and the weight of these devices. हम चाहते हैं कि हमारे devices portable हो, उनका साइज़ कम से कम हो, उनका वेट कम से कम हो. सो अगर आप ये चीज़ें सामने रखेंगे और आप नोट्स को डिज़ाइन करेंगे, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप द रिसोर्सेज लिमिटेड, द रिसोर्सेज लिमिटेड इन साइज़, इन वेट. सो इसका इफ़ेक्ट जो है वो पावर पे पड़ेगा. जो बैटरी है वो आपको स्मॉल से स्मॉल इंस्टॉल करनी होगी. जो प्रोसेसिंग पावर के लिए जो इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन के लिए जो एंटेना वगैरह आप यूज़ करते हैं, दे मस्ट बी थिनी इन साइज़. तो कहने का मतलब यह है कि रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स हैं इन सम टाइप्स ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. सो एस एन एंड रिजल्ट जो रूटिंग प्रोटोकॉल आप डिज़ाइन करेंगे, इट मस्ट बी ऑप्टिमली मैनेजेस दीज रिसोर्सेज. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के आपका रूटिंग प्रोटोकॉल वो कम से कम बैटरी लाइफ को कम से कम बैटरी पावर को कंज्यूम करे इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द लाइफ टाइम ऑफ द नोड एंड एज द नेटवर्क एज अ होल. इसके अलावा प्रोसेसिंग पावर CPU को वो कम से कम यूटिलाइज करे, कम से कम मेमोरी वो ले, कम से कम मैसेजेस को वो ट्रांसमिट करे, एंड सो ऑन. सो रिसोर्स कंस्ट्रेंट इज अनदर इशू. इसके अलावा और भी इश्यूज हैं, बट लेट अस मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम आइडियल प्रोटोकॉल फॉर मानेट्स. यानी जब आप प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं तो उनमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए. जो चैलेंजेस हमने एड्रेस की अभी, अगर उन्हीं चैलेंजेस को आप जो है वो एड्रेस करते हैं, सो दे बिकम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल प्रोटोकॉल. किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपका नेटवर्क डिप्लॉयड है या जहाँ पे आप रूटिंग प्रोटोकॉल को डिप्लॉय करेंगे, दैट इज़ लाइक अ मोबाइल, अ डायनामिक, जहाँ पे टोपोलॉजी आपकी चेंज हो रही है, राइट? वो इन्वायरमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. आपके इन्वायरमेंट में कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है. सो अगर आपका प्रोटोकॉल इन चीज़ों को एड्रेस करे, अगर आपका प्रोटोकॉल फुली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, तो इसका मतलब है कि यू आर फुलफिलिंग अ कैरेक्टरिस्टिक. इट विल लीड टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूटिंग प्रोटोकॉल जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं. यानी अगर आपका प्रोटोकॉल फुली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है, राइट, वो किसी सिंगल एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक. इस फुली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोटोकॉल, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? वेल, द फर्स्ट इसके अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाई ओवरहेड इन्वॉल्व्ड हैं, राइट. तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ओवरहेड वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग डिफरेंट नोड्स. और इसके अलावा फॉल्ट टॉलरेंस भी है. सेंट्रलाइज में अगर आपकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी या एंटिटी जो है वो काम करना छोड़ दे तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा. लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच है तो वहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस है. अगर एक नोड फेल हो जाए तो आप अल्टरनेटिव रूट टुवर्ड डेस्टिनेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल, यानी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में वो नहीं है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक is going to be that your protocol must be distributed in nature and it must not rely on a single centralized authority.
इसके अलावा और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सिंपल, आप खुद भी फिर इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक, मोबिलिटी इज़ अ की इशू इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क विच कॉजेज मैनी चैलेंजेस। सो आपका जो प्रोटोकॉल है इट मस्ट बी एडाप्टिव टू द फ्रीक्वेंट टोपोलॉजी चेंजेस। कोई लिंक अगर फेल होता है इट मस्ट बी एबल टू फाइंड अल्टरनेटिव रूट्स। कोई नया लिंक अगर इस्टेब्लिश होता है इट मस्ट बी एबल टू एकोमोडेट द चेंजेस। यानी आपका प्रोटोकॉल खुद को जो है वो एडजस्ट करे, अडाप्ट करे टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टोपोलॉजीज दैट अकर ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ द नोड्स फ्रीक्वेंटली। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए। इसके अलावा root computation and maintenance that must be as minimum number of nodes as possible। यानी from source to destination जो root आप कंप्यूट करते हैं, नंबर ऑफ हॉप्स फॉर एग्जांपल, दैट मस्ट बी लेस इन ऑर्डर टू रीच टू द डेस्टिनेशन। और रूट को जब एक दफ़ा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको मेंटेन रखना दैट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूटिंग प्रोटोकॉल एज लॉन्ग एज द रूट एग्जिस्ट देयर, राइट। तो कंप्यूटेशन of the path and also maintenance of the path with minimum overhead, that must be a characteristic of the routing protocol। इन अदर वर्ड वी कैन से कि जितने भी आपके पास नोड्स अवेलेबल है इन द नेटवर्क वो क्विकली रूट को एक्सेस भी कर सकते हैं विद a minimum connection or setup time that is desirable for an efficient routing protocol। इसके अलावा इसमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ओवरहेड, प्रोपेगेशन ओवरहेड वो कम से कम हो, क्योंकि जो आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि जो प्रोटोकॉल है वो आपने इस तरह का डिज़ाइन करना होगा जो कि कम से कम ओवरहेड हो, वहाँ पे कंट्रोल मैसेजेस कम से कम जो है वो एक्सचेंज हो। इसके अलावा जो ग्लोबल स्टेट इंफॉर्मेशन है उसको वो अवॉइड करे, लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन को वो फोकस करे, क्योंकि अगर आप पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की ग्लोबल इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे हर एक नोड पे तो उसका ओवरहेड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नेटवर्क की टोपोलॉजी बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज होगी। एंड देन यू हैव टू अपडेट ईच एंड एवरी नोड इन द नेटवर्क अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क ऑफ द होल मैप। तो उस केस में बहुत ज़्यादा ओवरहेड होगा। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नेबरहुड की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं लोकली एंड देन वी रिलाई ऑन द लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन। ऑल दो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट द प्लस पॉइंट इस केस में ओवरहेड आपके पास कम इन्वॉल्व है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज़ दैट लूप फ्री मैकेनिज्म इसमें होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? रूटिंग में हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं रूटिंग लूप प्रॉब्लम, and that is very much common problem with various type of networks that we have available। particularly computer networks की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ जो रूटिंग लूप है दैट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एरर। और ये एरर कब अकर होता है? ये एरर तब अकर होता है व्हेन जो आपका रूटिंग एल्गोरिथम है वो ऑपरेशन में होता है, वो ऑपरेट कर रहा होता है। एंड व्हेन दिस the error occur is a result in a group of nodes where a path to a particular destination forms a loop। किस तरह? Let me give you a very simple example। आपके पास फॉर एग्जांपल नोड A है, नोड B है एंड नोड C है। नोड A thinks that the path to some destination, for example C, is through इट्स नेबर नोड B। हमारे पास मल्टी हॉप कम्युनिकेशन है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में। नोड A C के साथ कम्युनिकेशन करने जा रहा है लेकिन द पाथ गोज थ्रू नोड B, राइट। एट द सेम टाइम नोड B जो है वो ये सोचता है कि द पाथ इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद C इट गोज थ्रू A या इट स्टार्ट एट A। अब क्या होगा? Whenever traffic for C, that is the destination, arrive at A or at B, जो भी हो, ये दोनों एक दूसरे को ये मैसेज जो है वो पिंग पोंग के इफेक्ट जो है वो होगा। A B को ट्रांसफ़र करेगा, हे
फॉरवर्ड दिस मैसेज टू सी, और बी ए को रिक्वेस्ट करेगा कि फॉरवर्ड द मैसेज टू सी. सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एन एंडलेस लूप. ये मैसेज हमेशा फॉर एवर जो है वो ए बी को ट्रांसफ़र करेगा, बी ए को ट्रांसफ़र करेगा, इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग इट टू द सी विच इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन. So we need a mechanism in order to deal with such type of situations. यानी रूटिंग लूप को एड्रेस करने के लिए आपके प्रोटोकॉल में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए और आप इसको इजीली एड्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा पैकेट कोलिजन मस्ट बी केप्ट मिनिमम. और किस तरह आप पैकेट कोलिजन को मिनिमाइज कर सकते हैं? वन ऑफ द रीज़न फॉर पैकेट कोलिजन इज़ ड्यू टू ब्रॉडकास्ट मेड बाय ईच नोड. सो ब्रॉडकास्ट को मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज़्म है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ब्रॉडकास्ट मैकेनिज़्म, या एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं एडाप्टिव ब्रॉडकास्ट मैकेनिज़्म. अगर आप यूज़ करें तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. इसके अलावा ऑप्टिमल रूट, बेस्ट रूट को फाइंड करना और जो स्टेबल रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कन्वर्जेंस को सिंपल बनाना, ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा जो आपके पास स्केर्ड रिसोर्सेज हैं इन सम टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हमने बात की बैंडविड्थ है, कंप्यूटिंग पावर है, मेमोरी है, बैटरी है, ट्रांसमिट पावर है, इन सब को आपने एफिशिएंटली ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है. आपके रूटिंग प्रोटोकॉल ने इन इश्यूज़ को भी एड्रेस करना होगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक के दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द रूटिंग प्रोटोकॉल कि इट मस्ट एड्रेस हाउ to use the scarce resources efficiently and optimally. इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट भी इसमें होना चाहिए. सम एप्लीकेशंस रिक्वायर हाई बैंडविड्थ, सम एप्लीकेशंस रिक्वायर लो लेटेंसी, सम एप्लीकेशंस रिक्वायर लो एरर बिट रेट एक्सेट्रा. तो अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी आपका प्रोटोकॉल एड्रेस कर रहा है, सो दैट इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा एज that you are getting from your protocol. So quality of service adaptability mechanism अगर उसमें है, time sensitive traffic के लिए या real time support अगर उसमें है, so that is going to be a plus point. So these were some of the characteristics. Now our last topic of this week is कि किस तरह हम रूटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. डिफरेंट तरीक़ों से आप एक चीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विद मोबाइल एड हॉक नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल. चूँकि बहुत ज़्यादा रूटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, डिज़ाइन हो चुके हैं, एंड देयर पर्पस इज़ टू provide accurate, fast, reliable routing information for highly dynamic and changeable network topologies. तो कुछ protocols जो हैं वो they deal only with a typical limitation of the network changing topology. उनका focus इस पे होता है कि mobility issues को address किया जाए, right? कुछ का focus जो होता है वो होता है कि किस तरह resources को efficiently utilize किया जाए. पावर है, बैंडविड्थ है, मेमोरी है एक्सेट्रा. कुछ का फोकस होता है कि किस तरह जो है लिंक्स हमारे पास प्रोन टू एरर है, तो एरर्स को कम से कम रखा जाए. अदर्स जो हैं वो बाकी फैक्टर्स को जो है वो एड्रेस करते हैं. सो वन ऑफ द चैलेंज इन द स्टडी ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल इज़ द एवल्यूएशन एंड डिज़ाइन ऑफ इफेक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें, वो इश्यूज़ जो अभी हमने पढ़े हैं. सो माइनर रूटिंग प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट तरीक़ों से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. द फर्स्ट अप्रोच इज़ के दैट इज़ बेस्ड ऑन रूटिंग इंफॉर्मेशन या अपडेट मैकेनिज्म. The second way to classify the protocol is based on the use of a temporal information related with the time. The third approach is based on topology. And the fourth approach is based on utilization of specific resources, right? अब एक प्रोटोकॉल होगा वो एक कैटेगरी में भी आ सकता है, एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी आ सकता है. कोई प्रोटोकॉल होगा जो कि 3 कैटेगरीज में आएगा, कोई प्रोटोकॉल होगा जो कि सिर्फ एक कैटेगरी में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोटोकॉल एंड आल्सो डिपेंडिंग के वो कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो एड्रेस कर रहा है.
नॉर्मली जब हम बात करते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर मानेट की, सो वी एक्चुअली फोकस ऑन द फर्स्ट कैटेगराइजेशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द रूटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट मैकेनिज्म। इस कैटेगरी में जो अवेलेबल प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम 3 सब कैटेगरीज में रख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टेबल ड्रिवन, द सेकंड one is on demand, while the third one is a hybrid approach which combine the advantages of both the proactive and reactive protocols, right? So we will be focusing more on the table driven and on demand routing protocols, लेकिन आप दूसरे के तरीक़ों से भी रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर मानेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। सो लेट अस सी दिस कैटेगरीज वन बाय वन। सो फर्स्ट लेट अस सी कि किस तरह हम प्रोटोकॉल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रूटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट मैकेनिज्म। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं इसको हम 3 मेजर कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द रूटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट मैकेनिज्म वो क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? वो कैटेगरीज सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज रिएक्टिव, द सेकेंड वन इज प्रोएक्टिव एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड। रिएक्टिव को हम ऑन डिमांड भी कह सकते हैं, प्रोएक्टिव को हम टेबल ड्रिवन भी कह सकते हैं, एंड देन वी हैव द हाइब्रिड वन। सो लेट अस सी के जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम प्रोएक्टिव और टेबल ड्रिवन रूटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, हाउ इट वर्क्स और व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। वेल, फर्स्ट पॉइंट इसके टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल को हम प्रोएक्टिव भी कह सकते हैं। इन प्रोटोकॉल्स में क्या होता है? द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इन सच टाइप ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स every node in the network will maintain the network topology information, and the information is going to be in the form of routing tables, and those routing tables must be periodically exchanged by the nodes in order to share the routing information with other nodes। जिस तरह नाम से जाहिर है प्रोएक्टिव, इट मीन्स के जो आपके पास किसी भी 2 नोड्स के दरमियान जो रूट्स अवेलेबल हैं दे मस्ट बी नोन इन एडवांस। प्रोएक्टिव, पहले से वो हम हर एक नोड को वो पता होगा। सो सच टाइप ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स में जितने भी आपके पास नोड्स हैं दे विल हैव टू मेंटेन द नेटवर्क टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होती हैं, रूटिंग टेबल्स, और उन टेबल्स को पीरियोडिकली नोड्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं विद वन अनदर in order to have a better picture over in order to have a better picture of the routing protocols। So जो routing information है that is generally shared by flooding the whole network or broadcasting the information from every node toward every other node। How it works: whenever a node requires a path to a destination, it runs an appropriate path finding algorithm on the topology information it maintains, right? यानी जब A ने B को कोई मैसेज सेंड करना है तो ये क्या करेगा? पाथ को फाइंड करेगा बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, और वह एल्गोरिथम जो इसके पास टेबल स्टोर है ऑलरेडी विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल नेटवर्क टोपोलॉजी, उसमें वो देखेगा कि किस तरह डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। इन सच टाइप ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स हर एक नोड के पास अपडेटेड रूटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ अ रूटिंग टेबल, और ये रूटिंग टेबल ये एक्सचेंज होते हैं पीरियोडिकली among all the nodes present in the network। इसके अलावा जब कभी नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई चेंज आ जाए तो ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा एंड दे नीड टू बी अपडेटेड, and all the nodes must need to be informed about the change so that they can change their routing table in order to maintain the clear and the updated picture of the whole network topology। So how it is accomplished: a node need to send a packet the route is readily available,
right? So they exchange hello, hi messages in order to keep exchanging the routing information about the latest routes they are available. Okay, so this is like in such type of network इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब किसी नोड को कोई पैकेट सेंड करना होता है तो रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो रेडीली अवेलेबल होती है. यू डोंट नीड टू एस्टेब्लिश द रूट व्हेन यू रिक्वायर. द रूट इज़ ऑलरेडी देयर अवेलेबल. यू जस्ट नीड टू कंसल्ट द रूटिंग टेबल टू फाइंड द एफिशिएंट रूट टुवर्ड द डेस्टिनेशन. सो लेट मी रिवाइज के जो प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं इनको टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं बिकॉज दे रिलाई ऑन द रूटिंग टेबल. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेबल ड्रिवन रूटिंग प्रोटोकॉल एज वेल. सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल में हर एक नोड के पास पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. How the network topological information become available by periodically exchanging the routing information, and how they share the routing information by flooding the network, by broadcasting the messages, by letting हर एक नोड जो है वो दूसरे नोड को जो है वो इन्फॉर्म करता है about the neighborhood, and then they updated their routing information accordingly. So such type of routing protocols में each and every node will keep an up-to-date routing information in the routing tables. और वो रूटिंग टेबल जो है वो पीरियोडिकली एक्सचेंज करते हैं विद अदर नोड्स. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई नोड किसी दूसरे नोड को पैकेट सेंड करने जा रहा है सो द रूट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देयर. यू डोंट नीड टू एस्टेब्लिश द रूट व्हेन यू रिक्वायर्ड इट. पहले से इंफॉर्मेशन रूटिंग टेबल में अवेलेबल होती है. यू जस्ट नीड टू कंसल्ट द रूटिंग टेबल टू फाइंड द पाथ टुवर्ड द डेस्टिनेशन. However, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एंड द डिसएडवांटेज इज के मोस्ट ऑफ द रूटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज इज अनडिजायरेबल. राइट, हो सकता है एक नोड किसी डेस्टिनेशन को किसी दूसरे नोड को कभी कोई पैकेट सेंड ही ना करे, लेकिन वो उस नोड की इंफॉर्मेशन भी अपने पास स्टोर रखेगा. ना सिर्फ स्टोर रखेगा बल्कि उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट भी रखेगा. सो अननेसेसरी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ टू मच. हाई ओवरहेड इज़ इन्वॉल्व्ड हेयर. Right, too much communication, too much control messages are exchanged in such type of protocol. That is called the table driven approach. Here is an example. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन मैप में कि वी हैव 5 डिफरेंट नोड्स A, B, C, D एंड E. फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि आपके पास जो नोड A है इट वांट्स टू कम्युनिकेट विद नोड D, यानी सोर्स आपके पास A है और डेस्टिनेशन आपके पास D है. और जो रूटिंग अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ टेबल ड्रिवन अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच. तो इसमें जिस तरह मैंने बताया कि हर एक नोड के पास टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, टोपोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल होती है. तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. फॉरवर्डिंग टेबल एट नोड ए, फॉरवर्डिंग टेबल एट नोड बी, एट नोड सी, एट नोड डी एंड एट नोड ई आर अवेलेबल. दे आर द सेम टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो कि इन नोड्स ने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की है. सो एवरी नोड नो अबाउट all the other nodes they are present in the network. So the scenario is like this कि A want to communicate with node D. So A क्या करेगा? It will only consult its routing table. Hey, I have a message for node D. ठीक है, that is the destination. तो इससे पता चलता है कि D को पैकेट सेंड अगर हमने करना है तो हमने क्या करना होगा? नोड C को कंसल्ट करना होगा. लेकिन नोड सी को कंसल्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? नोड बी को कंसल्ट करना होगा, और नोड बी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो ये पैकेट सेंड कर देगा टूवर्ड्स बी. अब बी देखेगा कि द पैकेट इज़ नॉट फॉर बी, द पैकेट इज़ फॉर डी. हाउ आई कैन सेंड द पैकेट और फॉरवर्ड द पैकेट टूवर्ड डी? ये अपने टेबल को कंसल्ट करेगा. द डेस्टिनेशन इज़ डी. किस नोड को ये आगे फॉरवर्ड करेगा? सी को. तो C इसके पास इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पैकेट C को फॉरवर्ड कर देगा. नाउ जैसे ही पैकेट C को मिलेगा, C अपने रूटिंग टेबल को कंसल्ट करेगा, एंड हियर यू कैन सी कि द डेस्टिनेशन इज़ D और D इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद C. तो C जो है वो पैकेट को सेंड कर देगा टूवर्ड्स D विच इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन. जो आपके पास एडहॉक नेटवर्क्स हैं और वो प्रोएक्टिव या टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करते हैं.
राइट। सो जो पावर कंजम्पशंस हैं और बैंडविड्थ की कंजम्पशंस हैं वो इंक्रीज होगी। Why? Because of the topological table exchanges among different nodes. जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंज आएगा, इंफॉर्मेशन जो है रूटिंग टेबल्स अपडेट्स होंगी और वो रूटिंग टेबल्स जो है वो नोड्स जो है वो एक दूसरे के साथ उसको शेयर भी करेंगे, एक्सचेंज भी करेंगे। So such information take place even if the network is in standby mode. कोई exchange of information नहीं है, only the movement occurs. एक node ने move किया है from one location to another location. No data transmission is in the network, but still you have to update the forwarding table because to let them updated, और वो जो है वो network topology की clear picture जो है वो आपको तभी show कर सकता है if they are updated. तो सच केस में जो बैंडविड्थ कंजम्पशन है, जो पावर कंजम्पशन है, दे आर हायर और दे इंक्रीज इन सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल अप्रोच दैट इज अ प्रोएक्टिव। अब किन सिनारियोस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं? दैट इज़ बेस्ट फॉर सिनारियोस जहाँ पे मोबिलिटी आपके पास बहुत कम हो या बिल्कुल नहीं हो। इन सच सिनारियो दिस अप्रोच इज़ इफ़ेक्टिव, राइट। क्योंकि नोड मोबिलिटी नहीं होगी तो आपकी टोपोलॉजी चेंज नहीं होगी। सेम टोपोलॉजी है तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी आपके कंट्रोल मैसेजेस नहीं होंगे, बैंडविड्थ आपका यूटिलाइज नहीं होगा, आपकी पावर जो है वो कंज्यूम नहीं होगी। सो आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द सिनारियोज जहाँ पे मोबिलिटी या तो ना हो या बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो। ओके। Some of the examples of these categories are OLSR, a very famous protocol, optimized link state routing protocol. इसके अलावा DSDV है, destination sequence distance vector protocol, and some other protocols as well. Okay, our second protocol of this category, or the second subcategory of this one is called the reactive, या इनको हम ऑन डिमांड रूटिंग प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज प्रोएक्टिव, यानी पहले से रूट्स हैं। रीएक्टिव मीन पहले से नेटवर्क की सारी टोपोलॉजी का हमें नहीं पता, हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन व्हेन वी हैव अ डेटा, व्हेन वी हैव अ पैकेट टू सेंड बेस्ड ऑन डिमांड। दैट इज वाई इसको हम ऑन डिमांड रूटिंग प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज द लिंक्स आर इस्टेब्लिश ऑन डिमांड, दे आर नॉट प्रोएक्टिव। So we can say that in these type of networks, the routes are created toward the destination only when they are required. तो इसका मतलब है कि जो प्रोटोकॉल्स ऑन डिमांड रूटिंग अप्रोच को यूज़ करते हैं, दे डू नॉट मेंटेन द होल नेटवर्क टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, दे ओनली ऑब्टेन द नेसेसरी पाथ व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। किस तरह? by establishing a connection process. So these protocol do not exchange the routing information periodically. जिस तरह प्रीवियस केस में हमने देखा कि ट्रांसमिशन नहीं हो रही, नोड मूव कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टोपोलॉजी। इस केस में अगर नोड मूव कर रहे हैं, doesn't matter, you don't need to exchange the routing information periodically as it was the case in the previous category of protocols. So यहाँ पे one of the important thing to understand is के how the routes are discovered. So उसके लिए हमारे पास procedure है, and that is triggered always when a source want to send a data to find a destination node, right? दोनों को कंपेयर करें। फर्स्ट अप्रोच में आपने कोई पैकेट सेंड करना है, यू हैव द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रूटिंग टेबल। ओके, किस नोड को पैकेट सेंड करना है, फिर उसने किसको सेंड करना है, आगे फॉरवर्ड करना है, एंड सो ऑन। सो यू नो इन एडवांस all the routes, all the intermediate nodes that are involved in the dissemination process. यहाँ पे the situation is different. So you need to discover the route when you want to send a data. अब destination कहाँ पे है? You have no idea. So you have to find, you have to establish the route. So the route is maintained. सिर्फ रूट को फाइंड नहीं करना, फिर उसको मेंटेन भी रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपका कोई भी नोड सोर्स, डेस्टिनेशन या इंटरमीडिएट वो मूव कर सकता है, राइट? तो रूट को आपने
फर्स्ट आपने जो है वो डिस्कवर करना है एंड देन फिर उसको आपने मेंटेन रखना है। मेंटेन कब तक रखना है? व्हेन द रूट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ट्रांसमिशन इज़ ओवर। तो उसके बाद आप जो है वो रूट को अगर मेंटेन ना भी रखे तो डजेंट मैटर। सो इस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, इस कैटेगरी में जो आपके पास कम्युनिकेशन ओवरहेड है, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, राइट। इन दिस केस कम्युनिकेशन ओवरहेड इज रिड्यूस। किस तरह? बिकॉज जो आप मैसेजेस, कंट्रोल मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अप्रोच। वहाँ पे जब भी कोई नोड चेंज करता है अपनी पोजीशन को, यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद ऑल द नोड्स। यहाँ पे यू डोंट नीड टू शेयर पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन अपडेट्स विद द नोड्स। आप सिर्फ कंट्रोल मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं व्हेन यू वांट टू सेंड अ मैसेज, राइट। तो यहाँ पे ओवरहेड कम है और यहाँ पे नोड्स पे, हर एक नोड पे हम टोपोलॉजिकल जो टेबल्स हैं, फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं, वो स्टोर भी नहीं करते। सो मेमोरी जो रिसोर्स कंजम्पशंस वाली बात है वो भी यहाँ पे कम है। सो सपोज करिए वी हैव द सेम सिनारियो, node A wants to send a packet to node D, toward node D. The problem is कि इसके पास पहले से कोई forwarding table नहीं है. It doesn't know where D is. उसकी location का इसको नहीं पता. So what will happen? It will simply transmit the data. डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए दो स्टेप्स है. सबसे पहले रूट डिस्कवरी है. रूट डिस्कवरी किस तरह होगी? Well, the root discovery process starts by broadcasting to all the nodes a small message. Hey, I am looking for D. ये broadcast करेगा, ये broadcast इसको भी आएगा और इसको भी आएगा. Do you have information about D? इसके पास तो D की information नहीं है, so ये खामोश बैठ जाएगा. लेकिन जैसे ही B को ये मैसेज मिलता है, right? When the message arrive at B, वो क्या करेगा? वो इस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा. हे आई एम लुकिंग और समबॉडी इज लुकिंग फॉर डी, डू यू नो वेयर डी इज. और सी को जैसे ही ये मैसेज मिलेगा ये आगे फॉरवर्ड करेगा. हे आर यू डी. तो जैसे ये मैसेज डी को आएगा, येस आई एम डी हु इज़ लुकिंग फॉर मी. अब जो है वो रिवर्स पाथ इस्टेब्लिश होगा. ओके तो ये सी को बताएगा कि मेरा एड्रेस अपने पास नोट कर लो, आई एम कनेक्टेड विद यू, अगर मेरे लिए कोई मैसेज है तो मुझे फॉरवर्ड कर ले. सी जो है वो बी को बताएगा, हे आई हैव एक्सेस टू डी, यस यू कैन फॉरवर्ड द पैकेट टू मी. और बी जो है वो ए को बताएगा कि ओके मेरे पास डी तो नहीं है लेकिन आई नो द पर्सन हु नोज द डी. तो जैसे ही आप रूट को डिस्कवर कर ले, उसके बाद आपने रूट को मेंटेन रखना है. कब तक इसको मेंटेन रखना है? जब तक जो आपका डेस्टिनेशन है वो इस पाथ को आपने कब तक मेंटेन रखना है? जब तक डी अपनी लोकेशन पे है, एक्सेसिबल है विद दिस लिंक, और जब तक यू हैव डेटा टू ट्रांसमिट. अगर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है, आपने सारा डेटा सेंड कर लिया, सारे पैकेट सेंड कर लिए, तो अब रूट को मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है. या अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये डी मूव कर जाए फ्रॉम इट्स लोकेशन, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आ जाए, ई के साथ कनेक्ट कर जाए, नाउ यू द यूज़ ऑफ दिस लिंक इज़ यूजलेस. तब भी आप रूट को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. सो अगर जो रूट है वो नो लॉन्गर डिज़ायर्ड है, तब भी आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, या अगर नोड मूव कर जाए तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके अब अगर कोई मोबाइल एडहॉक नेटवर्क इस अप्रोच को, ऑन डिमांड प्रोटोकॉल अप्रोच को यूज़ करता है, तो उसका एक डिसएडवांटेज है. एंड द डिसएडवांटेज इस के ये प्रोटोकॉल जो है, दे विल नॉट मेंटेन द करेक्ट रूटिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द नोड्स एट ऑल द टाइम. ये नोड मेंटेन है, ओके ये रूट मेंटेन है, लेकिन अगर ये नोड मूव कर जाए, सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एक्यूरेट, राइट. एंड वी डोंट नो वेयर द नोड इज़, क्योंकि टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ वो शेयर नहीं हो रही. सो वी हैव नो आइडिया अबाउट द न्यू लोकेशन ऑफ द नोड. इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज भी है कि रूट डिस्कवरी प्रोसेस के लिए जो मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ब्रॉडकास्ट मैकेनिज़्म. और आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट मैकेनिज़्म के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. एंड द डिसएडवांटेजेस आर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशंस अकर होगी, राइट. सो
कंजेशन अकर होगी तो कोलिजन अकर होगी, आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो जो है वो सही यूटिलाइज नहीं होंगे। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, और वो एडवांटेज क्या है कि जो आपके पास वायरलेस चैनल है जो कि इसके रिसोर्सेज हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ रूटिंग ओवरहेड। जिस तरह प्रीवियस केस में था, ओवरहेड वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे ओवरहेड हमारे पास कम है। अगर कोई नोड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वन ऑफ द फेमस वन इज़ AODV, ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर, एंड वी आल्सो हैव DSR, डायनामिक सोर्स रूटिंग प्रोटोकॉल, एंड सम अदर प्रोटोकॉल्स. And the last one of this category is the hybrid routing protocols, which combine the best feature of both the two approaches. यानी कभी जो है आप वो proactive protocol को use करेंगे in some scenario, while in other scenario you have to use reactive protocols. and यहाँ पे एक example given है कि for example आपने zones में nodes को divide किया है, तो इनसाइड द जोन, इनसाइड अ पार्टिकुलर एरिया आप टेबल ड्रिवन अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बियॉन्ड द जोन कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए फिर आप जो है वो रिएक्टिव प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ दिस कैटेगरी आर ZPR, जोन रूटिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा हमारे पास जोन बेस्ड हायरार्किकल लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, एंड सो ऑन। सो दिस वाज द फर्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर मानेट। इसके अलावा हम टेम्पोरल इंफॉर्मेशन के बेस पे भी रूटिंग प्रोटोकॉल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब टेम्पोरल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विद द टाइम, राइट? वो टाइम पास्ट का भी हो सकता है, दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द फ्यूचर, जिसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं, वो भी हो सकता है। चूँकि हमारे पास मोबाइल एडहॉक नेटवर्क दे आर हाईली डायनामिक, और वहाँ पे पाथ ब्रेक्स दे आर मोर फ्रीक्वेंट एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क एंड आल्सो विद द वायर्ड नेटवर्क. So temporal information regarding the lifetime of these links and the lifetime of the paths selected assume significance, right? तो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी जो हमारे पास टू सब कैटेगरीज है, द फर्स्ट वन इज़ कि आप पास्ट टेम्पोरल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें। इस कैटेगरी में जो प्रोटोकॉल्स हैं, दे यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट स्टेटस ऑफ द लिंक और द स्टेटस ऑफ द लिंक एट द टाइम ऑफ रूटिंग टू मेक रूटिंग डिसीजंस। ठीक है, यानी अगर ए ने सी को डेटा सेंड करना है तो लास्ट टाइम उसने सी को डेटा किस तरह सेंड किया था? थ्रू बी। अब इस पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए दोबारा अगर वो सी को डेटा सेंड करना चाहे तो वो उसी प्रीवियस रूट को दैट गोज थ्रू बी, उसी को वो यूज़ करेगा। इसके अलावा कुछ मैट्रिसेस आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट टेम्पोरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड के क्या वो लिंक जो पास्ट में अवेलेबल था उसको आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वायरलेस लिंक, राइट? इसके अलावा जो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास प्रीवियसली अवेलेबल था वो, या कुछ भी आप जो है वो पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो इस टाइप अप्रोच को अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आपके पास इमीडिएटली लिंक्स जो हैं जो ब्रेक हुए हैं, उस केस में जो है ये टोपोलॉजी जो है वो काम नहीं करेंगी, बिकॉज पहले लिंक अवेलेबल थे, अब अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप उसी को यूज़ करेंगे और वो लिंक अवेलेबल नहीं है अभी, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर टेम्पोरल इंफॉर्मेशन को भी, एंड दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द फ्यूचर प्रिडिक्शन आप करते हैं। इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल है, दे एक्चुअली यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्टेटस ऑफ अ वायरलेस लिंक। इसमें आप प्रिडिक्शन करते हैं कि अच्छा फ्यूचर में इस लिंक का स्टेटस क्या होगा, इस लिंक की क्वालिटी क्या होगी, इस लिंक की का जो लाइफ टाइम है वो कितना है, व्हाट इज़ द फ्यूचर स्टेटस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट लिंक, और व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ, फॉर एग्जांपल जिस नोड को आप ट्रैफिक सेंड जिस नोड को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर फॉरवर्डिंग अ मैसेज, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, उसकी मोबिलिटी क्या है।
अगर उसकी एनर्जी कम है और आपको पता है कि वो जल्दी पास्ट में आपने उसकी एनर्जी लेवल देखी थी और अभी आपको पता है कि उस नोड की एनर्जी तो ख़त्म हो चुकी होगी, वो डाई हो चुका होगा, मर चुका होगा, या वो वहाँ पे नहीं होगा, या अगर मोबिलिटी की हम बात करें, अगर आपको पता है कि वो नोड बहुत ज़्यादा मोबाइल है, वो हर वक्त मूव करता रहता है, तो उसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि हो सकता है देयर आर चांसेस कि वो अवेलेबल ना हो। तो आप बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रिडिक्शन आप जो है वो आप प्रोटोकॉल्स को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। दैट इज़ अनदर कैटेगरी। Third way to categorize the Manet routing protocol is based on the routing topology. And that is very simple कि जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि आपके पास फ्लैट टोपोलॉजी भी है और हायरार्किकल भी है। फ्लैट टोपोलॉजी जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में IEEE 2.3 लेन्स में, दैट इज़ अ फ्लैट टोपोलॉजी जिसमें चेंजेस नहीं है और उसमें हम जो है वो ग्लोबल यूनिक एड्रेसेस स्कीम को फॉलो करते हैं, एड्रेसेस मैकेनिज्म को हम यूज़ करते हैं। So flat topology is not that much encouraged to be used in mobile ad hoc network due to mobility. ग्लोबल एड्रेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका एक ओवरहेड ये भी है कि दे आर लाइक आपको अगर पूरे नेटवर्क की के लिए एड्रेस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं एट अ ग्लोबल लेवल, सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन ओवरहेड एंड आल्सो जो है वो आपके जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज होंगी इन ऑर्डर टू नो अबाउट द एड्रेस, यूनिक एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी नोड इन द टोपोलॉजी और इन द नेटवर्क. So flat topology routing protocols is not that much encouraged. Hierarchical routing protocol is another subcategory of this type, जहाँ पे जो है आप लॉजिकली हायरार्की इन द नेटवर्क को जो है वो फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ एड्रेसिंग स्कीम्स, यानी आप जो है जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं फॉर एड्रेसिंग पर्पसेस किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई नोड्स हैं, जस्ट लाइक द जोन्स, जस्ट लाइक द क्लस्टर्स, उनके बेस पे अगर आप एड्रेसिंग करते हैं, सो देयर इज़ मच मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द फ्लैट टोपोलॉजी रूटिंग प्रोटोकॉल्स. And finally, we have the last category, and that is based on utilization of specific type of resources. दो तरह के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, प्रोटोकॉल्स that are aware of the power or any other resource. इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, पावर अवेयर रूटिंग प्रोटोकॉल्स, इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. For example, battery, for example, processing power, for example, transmission power, for example, any other resource को आप ले सकते हैं, but they must be aware. Power is the most important resource in some type of network, so that is why power is mentioned here. They are aware कि आपके नोड की बैटरी पावर अब क्या है, right? क्या मैं उसको फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं उसको अपना मैसेज दे सकता हूँ कि वो आगे फॉरवर्ड करे या नहीं. सो यहाँ पे जो रूटिंग डिसीजंस हैं दे आर बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग द पावर कंजम्पशंस, और वो कंजम्पशन वो डिसीजंस आप लोकली भी ले सकते हैं और ग्लोबली इन द नेटवर्क स्केल पे भी आप ले सकते हैं. सो अगर आपका प्रोटोकॉल में ये फैसिलिटी है कि वो पावर लेवल को सामने रखते हुए रूटिंग डिसीजंस ले रहा है, अगर वो इंटेलिजेंट हैं, सो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर अवेयर रूटिंग प्रोटोकॉल. और इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन असिस्टेड रूटिंग प्रोटोकॉल्स इसको हम कहते हैं. उसमें क्या होता है कि सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दे ट्राई टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रूटिंग, और किसी तरह जो है वो कंट्रोल ओवरहेड को कम किया जाए बाय यूटिलाइजिंग द जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. यानी क्लस्टर्स अगर हैं और अगर कोई मैसेज नोड ए नोड बी को कोई मैसेज सेंड कर रहा है एंड दे आर इन द सेम क्लस्टर, और किसी तरह नोड को पता चल जाए कि ये तो मेरे अपने क्लस्टर में है, अपने जोग्राफिकल एरिया में है, सो अगर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कोई प्रोटोकॉल जो है वो हैंडल कर रहा है, सो उनको हम कहते हैं कि ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन असिस्टेड रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं. सो दिस वाज अबाउट द कैटेगराइजेशन by different means of the routing protocol जो कि related है with the mobile ad hoc network. Inshallah coming week में we will be elaborating some of the protocols in details. अभी हमने देखा कि चैलेंजेस कौन से हैं और किस तरह हम मानेट के प्रोटोकॉल को कैटेगराइज कर सकते हैं. अभी तक किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को, मानेट के किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को हमने नहीं पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी सीइंग दैट. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.